अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, अपनी वाली का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल कर लें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है अटल रोहतांग टनल। ये टनल है, टनल। मोदी जी ने बनाया है। सो देखते हैं इस टनल को कैसा है। ये मोदी जी ने अपने हाथों से बनाया है। मोदी जी ने बनवाया। अच्छा, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है द अटल रोहतांग टनल, दिस चेंज इन एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। Oh, we are here. Arre, Atal Tunnel. Look at the number of people. I'm so surprised. For no reason. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to another one of Ronnie's vlogs. And Namaste Ji. As you can see, I am right behind, standing in front of the Atal Rohtang Tunnel, which was inaugurated yesterday by the Prime Minister himself. This is a very big game changer, not just for Laolis, but also for people from Manali. And today I have with me my very good friend Arjun, who is actually a Laoli and runs a business out there in Jispa. So it's a big game changer for him. Definitely, right? Big game changer. So my first impression is like, wow, right? आखिरकार बन गया। इतने से देखा है, बनते हैं, अब इतने हो गए तो बन गया। So very happy. It looks very modern, I think, like full painted and with like LED signboards, and unlike the normal tunnel, like the out tunnel you go through really looks like पता नहीं कोई अंग्रेजों के ज़माने में खोदा हुआ tunnel है। Like this looks like quite modern and very fancy. What do you think this is for? I have no idea. There are footprints on it. I don't know. Hopscotch, I guess. Pretty cool because they've got like a whole series of photos from the first blast right up to the point where the tunnel is fully ready, so you can see the story in like one slideshow kind of thing. हम आपके साथ एक पोज ले लेते हैं। क्यों नहीं? चल ले भाई। I just got a rose from this gentleman. Yes, क्या बात है। Thank you, uncle. आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। टनल खुल के। क्या बात है। It's very happy. चलो जी। Here we go, guys. Extreme. Ronnie, Beach Road में। क्या पोज है? क्या बोल रहा है? Extreme pose. Welcome to world's longest highway tunnel above 10,000 feet. Speed limit 40. Oh, tunnel! कितने साल से रुके? Part Arjun ji, हाँ जी। we have facts that this tunnel is 9 kilometers long. This has a drainage system underneath. इतनी मेहनत होगी इसके Power बनने wire में यार। ducts. पूरे पहाड़ कटता है। There are air ducts on the top, and then there's an escape tunnel below where we are driving. Yes. वो सब तो ठीक है। हाँ जी। सर फील बताओ सर, फील कैसी है? फील वो कहते नहीं है वो टीनेजर्स
जब पहली बार वो कभी डेट में जाते हैं तो उनके पेट में क्या होता है, वो बटरफ्लाई वो मेरे हो रहा है अभी, वो स्टमक में बटरफ्लाईज हो रहे हैं। और वो लोग आँख बंद किया और खोला लाहौल में, ये तो भगवान, रोहतांग जाओ, बड़ी की 14 मोड़, फिर ट्रैफिक। मेरा तो वो भी आज स्कूटी भी आ सकता हूँ मैं तो फिर, है ना? और क्या। मतलब सोच तू एक चीज भूल गया, फॉर इंस्टेंस, अरे मैं साबुन लाना भूल गया। नो प्रॉब्लम मैं यूं गया और यूं आया। आज का चिकन खाना डिनर पे, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। ओ हाँ, वीर की पार्टी, कितनी पार्टी मिस की ना उसके, कहाँ पार्टी, वीकेंड पार्टीज, ओ सैटरडे, लेट्स गो। नो प्रॉब्लम। Too many possibilities. There's too many possibilities. Too much. So cool because the whole tunnel is like lit with obviously lights. But what's cool about that is that it doesn't feel like dingy and claustrophobic. You know, it has a very nice free feel. Obviously, keep your windows up because of the fumes, but they have a whole system over here to purify the air. Like from time to time, you can see these air purifying machines all along the wall. And yeah, like it's really, I'm saying this again and again, but it's very futuristic. Like trust us, because the other tunnels you see around here, this really feels like 21st century. Like. So basically, this whole project is a joint effort between 3 different organizations, which is Strabag, which is from Austria, the company, Afcon, which is from India, the engineering company, and obviously the Border Roads organization, without which this wouldn't have been actually possible. So actually, without anybody, this wouldn't have been possible. 10 years into the making, you know, it's a very, very big feat of engineering, and we are happy. People in Manali are happy. People in Lahore are happy. I mean, the tourists are going to be ecstatic. You can't even imagine the kind of winter tourism that you're going to see just once we cross this tunnel. It's taking too long, yeah. Nitro. ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? Okay, I just wanted to basically check the temperature inside the tunnel, and the car is showing 19 degrees. What was it showing outside? Was it? I had an idea. It was like what? 24. So right now it's 19. Let's see what's the, like. I wanted to record the temperature outside in Solang, yeah. Okay, we're here. Still ruling. Okay, guys, here we are on the other side. Looking good. Okay. Easy one. That was simple. Oh God. Arjun, do you believe it now? No. No. Pinch you. Please. Okay, so here we are in Lahore Valley. It took us exactly about 15 to between 15 and 20 minutes to cross the tunnel, and we were driving literally at 40. So I think Sisu is going to become like the next destination, definitely, because this is the first village that comes close, and you've got the huge Sisu waterfall. And yeah, it's autumn season right now, and you have these yellow trees out here which are so beautiful against the blue. It's gorgeous. Lahore, different seasons, different experiences. But winter is what we're looking forward to, you know. And I just hope they keep these roads open during the winter. Otherwise, what's the point? We want to experience Lahore during the winter, you know, minus 15, minus 10 degrees. That's the time. We're gonna come, grab our skis, go up, backcountry skiing. Okay guys, so that was a quick vlog from our side. What the future holds for the people of Manali and Lahore, I have no clue. You know, it's all under speculation right now. The pandemic is still on, we should not forget that. And I think we'll only come to know once the tourists start flowing in and once things start settling. So yeah, but the
The tunnel is out of the world. You don't really feel that 9 kilometers at all because it's all just so bright. And yeah, it's definitely going to be a game changer. That's what we know. But how? That is the big question. तो ये था लॉन्गेस्ट टनल। अच्छा दुनिया का टनल, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टनल था ये, 10,000 फीट लॉन्गेस्ट। अच्छा इससे एक तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में इतनी चीज़ें, इतनी नई नई चीज़ें, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बचपन अटल वाजपेयी उनके ज़माने में ही, और मतलब इन्होंने इनका फाइनल किया होगा मेरे ख्याल में। तो तभी तो नाम है ना उसका, अटल टनल। हाँ, और उन्होंने इफ्तिताह इन्होंने किया, फाइंड अप जो हुआ होगा कंप्लीट हुआ होगा। अच्छा टनल जो होता है ये पहाड़ों को काट के बनता है। यकीन करें आप, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितनी मेहनत, कितना टाइम पीरियड, क्योंकि पहाड़ जो होती है ना कंक्रीट, इसको तोड़ के ब्लास्टिंग करनी पड़ती है अंदर, बाकायदा मटेरियल, बम वगैरह, मटेरियल वगैरह फिर उससे पहाड़ फटते हैं, फिर उसको सुरंग बनती जाती है, तो वो बता तो रहा है वो यंग हो गया और उसने अपने मतलब चाइल्डहुड में कई साल लग गए यानी इसे बनने में। और ये इससे पहले की हुकूमत नहीं बन रहा। अच्छा आपको पता है टनल के बगैर एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उनका कोई हल नहीं होता सिवाय प्लेन के। ठीक, प्लेन के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं दूसरे शहर इस पहाड़ को क्रॉस करते हुए। और इसके प्लेन तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसी जगहों पे तो एयरपोर्ट्स तो होते नहीं हैं, ठीक है ना, तो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जाना या ब्रिजेस बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही टाइम टेकिंग काम होता है, रिस्की होता है। और वहाँ के जो देहात होते हैं, लोग होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे गांव में जाने में, आपने देखा था एक मूवी बनी थी एक इंसान के ऊपर जिसकी अपनी सच्ची कहानी थी मूवी की, और उसके ऊपर पूरी मूवी भी बनी, मांझी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ जो होती है, गांव देहात में रहते हैं, तो वो पहाड़ पे चढ़ते हुए रोज़ाना उसको खाना देने जाती है, पता नहीं किसी काम से उस तरफ जाती है पहाड़ चढ़ के। तो गांव वाले सारे या तो यूँ पहाड़ घूम के जाते हैं या पहाड़ चढ़ के जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक पहाड़ था उनके गांव में, बीच में, तो उसकी डेथ हो जाती है उसकी वाइफ की, इसी वजह से। तो उस वजह से फिर वो क्या करता है, वो तकरीबन नीम पागल सा हो जाता है, बिल्कुल मजनू हो जाता है, पहाड़ तोड़ने लग जाता है, पहाड़ के अंदर से रास्ता बनाता है। ये सच्ची कहानी है। फिर बाकायदा उस दौर की वज़ीर आज़म ने उसके साथ उसने तस्वीर बनाई, और मतलब एक शख्स की हिम्मत की दास्तान थी कि एक शख्स ने हिम्मत की तो पहाड़ काट के बीच पे रास्ता बना लिया। लगा रहा, दाढ़ी आ गई, बूढ़ा हो गया, बुज़ुर्ग हो गया, पागल भी लोग कहते थे, लेकिन एक शख्स ने, न्यूज़ अखबार के रिपोर्टर ने उसकी खबर छाप दी ये पहाड़ काटने वाली। तो पहाड़ काटना और ये टनल बनाना, बात करने का मकसद सिर्फ ये कि इससे लोगों को रास्ता मिलता है, और कुदरत ने जो रास्तों में पहाड़ रखे होते हैं तो उसको भी इंसान, देखो इंसान कितना ताकतवर हो गया, इंसान ने टेक्नोलॉजी पे कितना काबू कर लिया कि वो पहाड़ काट के भी अंदर से रास्ते में मामलात में भी मतलब अमल दखल कर सकता है। अमल दखल का तो नहीं कह सकते, लेकिन तरक्की कह सकते हैं, यानी कि हवा में उड़ के सफ़र किया, जहाज़, कर सकते हैं, पहाड़ों को तोड़ना बहुत बड़ी बात है, कमाल है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन इलाके के लोगों को लिए। अच्छा इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है यहाँ के लोगों को। और अच्छा ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ विजिटिंग के लिए आए थे, घूमने फिरने। अच्छा जब ये दूसरी तरफ पहुँचे तो आपने एक चीज़ नोट की थी, कितना खूबसूरत इलाका, यानी कि आपने एक इलाका डिस्कवर कर लिया, यानी कि वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल था शायद लोगों के लिए, तो वहाँ तक टनल के ज़रिए आप एक खूबसूरत जन्नत में आसानी से दाखिल हो गए। और वहाँ पे ना इशू ट्रैफिक का, ना ऐसा है कि सिर्फ आप कार में ही जा सकते हैं, आप बाइक पे भी जा सकते हो, आप जैसे ट्रैवल करना चाहो, जैसे इजी हो वैसे कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है ये कहाँ बनाया गया है? मनाली हाईवे उसके ऊपर। ज़बरदस्त। और इससे इनकी टूरिज़्म को कितना फ़रोग मिलेगा, यानी कि आसानी हो गई ना लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना टनल के थ्रू। फिर उसके बाद आप एक ऐसी जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे पहाड़ हैं, आप वहाँ पे गुजर नहीं सकते थे, आप गाड़ियाँ नहीं चला सकते थे, तो यानी यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और पूरी कंट्री के लिए भी। यानी कि जब उस एरिया को फ़ायदा होता है तो आसपास कितनी और मज़ीद चीज़ें तरक्की करती हैं, आसपास मज़ीद लोगों को फ़ायदा होता है और चीज़ें बनती हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं, तरक्की होती है, लोग आते हैं, देखते हैं, जिससे उस कंट्री के इनकम में इजाफा होता है। ज़रा मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इंडिया कुछ भी करता है ना तो मतलब इतनी परफेक्शन से करता है कि वो मतलब पूरी दुनिया को बीट कर देता है। अब आप देखिए वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है,
बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर 10,000 फीट लॉन्ग, कमाल है, कमाल है। और आपने देखा था जहाँ से वो मतलब एंट्रेंस था, आपने देखा था वहाँ पे, और जहाँ से वो निकले मतलब जहाँ पर वो पहुँचे थे अराइवल, मुझे ऐसा लगता है कितना चेंज था। आपने देखा मतलब वो ये कहते हैं ना गेम चेंजर है, वाकई वो था। अच्छा एक अच्छा, आप जहाँ से अब थोड़ा सा वो ये कह रहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स को वाकई बयान नहीं कर सकता, और ये है हम जाके कहीं पे जो फील कर पाते हैं, जो फीलिंग्स होती है हमारी, वो हम वर्ड्स में इमोशंस नहीं बता पाते, नहीं बता सकते, अंदर से फीलिंग हो रही होती है बस। आपका एक इन्वायरमेंट अलग था, फिर वहाँ पे जाके एक अलग ही सीन थे, एक अलग ही ब्यूटी थी क्या। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत येलो है, और कहते थे कि अभी तो ये मौसम भी नहीं है, ऑटम था, वो ये कहते स्प्रिंग विंटर, और हसीन लगता होगा उसमें। कमाल है, कमाल है वाकई। मतलब है कि गेम चेंजर कहा जा सकता है। बिल्कुल गेम चेंजर ही कहोगे ना, या कुछ और। काबिले तारीफ। तो कब चल रहे हैं यहाँ घूमने फिरने? जब इंडिया के रास्ते खुल जाएंगे। दुबई से चल रहे हैं? दुबई से चलेंगे, बाय दुबई। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वाकई 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 घूमने की जगह, वाकई एंजॉय करने की जगह, और कुदरत की, अल्लाह पाक की नेचर जो है ना, कमाल है। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करें। क्यों? आप क्या ही नहीं रहे हैं? अरे तो अच्छा, आप भी कह सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को पे करते हैं, दोस्तों कुछ काम हमारे खुद भी करा करें। वो जो सारे काम करता हूँ वाले। कौन से? अच्छा, मत मैं बताता हूँ। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।